Hello guys, this is your mentor Prakash Singh Chauhan. I welcome you to the Chauhan's Academy. And guys, today we are going to discuss poem number 3 from your first flight book, and it is A Tiger in the Zoo. Means एक टाइगर है जो कि जू के अंदर कैद है, कन्फाइंड है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Written by Leslie Norris. Guys, before we discuss about this poem and line by line, word by word discussion, let's have a brief introduction about the poet Leslie Norris. Leslie Norris is an American poet. He belonged to United States, and he took birth in the year 1921, and the last day he lived is 6th April 2006. Leslie was a prize-winning poet and short story writer. Guys, Leslie Norris is considered, he was considered one of the most important writers of the post-war period. Post-war means after World War II. He was believed most important writers, and his literary publications have won many prizes. Basically, he is a poet. Poetic writings is the best work done by him. Guys, in this poem, A Tiger in the Zoo, the poet Leslie Norris has tried to differentiate in between two different scenario of a same tiger. एक ही टाइगर के बारे में दो different scenario बताए हैं पोएट ने, where he has described about how a tiger behaved his nature in the cage when he is confined to a cage. जब वो केज में बंद हो, कैद हो, तब वो उसका नेचर क्या होता है, how he behaves and how he reacts to others reaction. किसी के सामने कैसे react करता है. And on the other hand, how the same tiger, when he is made to forest, put to forest, when he is living in the forest, how he behaves, how his nature is shown over there in the forest. Forest or jungle is the natural habitat of a tiger. So in this way, the poet Leslie Norris has described about the two different nature, two different scenario of the same tiger. Guys, in this poem, the poet Leslie Norris tries to depict the mental condition of a caged tiger, जो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, उसकी mental condition के बारे में बताया गया है. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in the natural habitat. यहाँ पे पोइट ने कंपेयर करने की कोशिश करी है कि टाइगर जब जू में होता है, बंद होता है, उसका क्या मतलब लाइफ होता है, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट या जंगल में रहता है तब वो कैसा बिहेव करता है, उसका नेचर क्या होता है. द पोइट कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी लेफ्ट इन दियर नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मीन्स फॉरेस्ट. And in the poem he heightens the contrast of the difference between freedom and captivity, how somebody or some animal behaves when he is free and how he behaves, how the same animal behaves when he is captive. मतलब बंद होता है, किसी के कब्जे में होता है तब. तो कैसे एक एनिमल बिहेव करता है जब वो बंद होता है, किसी के कब्जे में होता है, कस्टडी में होता है, और कैसे जब वो आज़ाद होता है, फ्री होता है, तो कैसे बिहेव करता है. दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल इन दिस पोएम. And in this way, we will read in this poem that how love for freedom, किसी का freedom पाने के लिए जो एक eagerness होता है, love होता है, वो कैसे कितना ज़्यादा natural extent होता है. वो मतलब हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी के अंदर ये आवाज़ होती है कि I should be free from all the बाउंडेशंस, ऑब्लिगेशंस. ये हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन ना लगे, फालतू के बेकार के बाउंडेशंस ना लगे. सो इन द सेम वे टाइगर इज विलिंग फॉर दैट व्हेन ही इज caged, when he is in captive in the zoo. Okay, so let's discuss the stanza. There are 5 stanzas, and guys, before I start the discussion, I would like to tell you stanza number 2 and stanza number 4, I think. Stanza number 2 and stanza number 4. Okay, let's see and then we will discuss. Stanza number 1. Let's discuss the stanza number 1. Stanza number 2 and stanza number 3, I think. Stanza number 2 and stanza number 3 is talking about how a tiger should be behaving, how a tiger is like when he is in his natural habitat, means जब वो जंगल में होता है कैसे होता है. और stanza number 1, 4, 5, I repeat, stanza number 1, 4, 5 talks about how a tiger behaves, or how a tiger is like when he is in cage. ये बताया जा रहा है. फिर से बता रहा हूँ, स्टैंजा नंबर 1, 4, 5 हमें केज में जो कैद है, बंद है टाइगर, उसके बारे में बता रहा है. स्टैंजा नंबर 2 और स्टैंजा नंबर 3 एक टाइगर जो कि जंगल में, उसके बारे में बताया जा रहा है. ओके, स्टैंजा नंबर 1. He stalks in his vivid stripes,
the few steps of his cage on pads of velvet quaked in his quite rage. Now let's discuss the word meaning. नंबर ए, फर्स्ट लाइन का विविड. विविड का मतलब होता है डीप, क्लियर एंड ब्राइट इमेज. एक ऐसा इमेज जो आपको बहुत ही गाढ़ा दिख रहा हो, क्लियर देख सकते हैं आप उसको, ब्राइट कलर का वो हो. जैसे कि टाइगर का इमेज क्या है, आई मीन ऑरेंज येलो कलर होता है उसका बैकग्राउंड मतलब स्किन का कलर उसका ऑरेंज कलर होता है, उस पर स्ट्राइप्स बनी रहती है, लॉन्ग नैरो बैंड्स लाइंस बने रहते हैं. देन केज मतलब होता है एनिमल्स और बर्ड्स कन्फाइनमेंट, जहाँ पे कैद करके रखते हैं उसको. पैड्स मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट, पैर के नीचे जो पैड होता है, जैसे हमारे पैर के नीचे भी होता है, लेकिन टाइगर्स वगैरह के कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं. रेज मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर. देखिए मैंने सब लिख रखा है यहाँ पे. स्टॉक्स का मतलब होता है, लाइन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टॉक्स, इसका मतलब होता है मूविंग क्विकली टू फॉलो समथिंग. ठीक है. Now here the poet is talking. A tiger is, confined to a cage. एक केज में बंद है टाइगर, and he is moving very slowly, following his own place. अपनी ही जगह को वो फॉलो कर रहा है. He is knowing that he is having only less space. एक केज में बंद है और उसको बहुत कम स्पेस मिला हुआ है. So he is moving, very softly, very, slowly. That he has no space. उसके पास जगह नहीं है. Like when you are giving your exam and your invigilator is in the room, you people are giving your exam and your invigilator is moving from one corner to another corner. He is knowing that I have only this much of space to move. उसी तरह से टाइगर को भी ऐसे ही पता है मेरे पास इतना ही स्पेस है और वो उसी स्पेस में स्लोली मूव कर रहा है. ही हैज़ नो टाइम बाउंडेशन दैट आई हैव टू मेजर लॉन्ग लेंथ. मुझे बहुत दूर तक जाना है, जंगल में ऐसा नहीं है. वो थोड़ी सी जगह उसके पास, वो धीरे धीरे चल रहा है. स्टॉक्स मतलब मूविंग स्लोली एंड क्विकली, चुपचाप से. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज में जो थोड़ी सी जगह उससे मिली हुई उतने में ही घूम रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे कहा गया. पैड्स मतलब जो पैर के नीचे का पोर्शन होता है, सॉफ्ट पार्ट, उसको पैड्स बोल रहे हैं. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट, उस पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब उसके पैर के नीचे वाले पोर्शन को वेलवेट से कंपेयर किया गया. वेलवेट एक सॉफ्ट वुलन सिल्क आइटम होता है जो बहुत ही मखमली होता है, और वो क्वेट कहा गया. ऑन ही इज मूविंग स्लोली ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, जो वेलवेट की तरह उसके पैड्स है उस पर धीरे धीरे चल रहा है. और जब उस पैड पे चलता है, जब कोई सॉफ्ट चीज़ रखी जाती है कहीं पे, तो वो आवाज़ नहीं निकालती. आप किसी भी कॉटन को, सिल्क को ले लीजिए, उसको अगर नीचे ज़मीन पर गिराइएगा तो उससे आवाज़ नहीं निकलती है. वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए जब हार्ड दो चीज़ें टकराती है तभी आवाज़ निकलती है. तो उसके पैड्स बहुत ही वेलवेट की तरह हैं और वो जब चल रहा है तो कोई आवाज़ नहीं निकल रही है. सो व्हेन ही इज मूविंग स्लोली ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, इट मेक्स नो नॉइज. दैट्स व्हाई इट इज सेड क्वाइट. इन हिज क्वाइट रेज मतलब वो बहुत ही शांत है. क्वाइट एंड रेज, वो एक तरफ से बहुत ही गुस्से में भी है. दैट व्हाई आई एम कन्फाइंड टू दिस केज, आई शुड बी इन द जंगल. वो गुस्से में मुझे इस केज में बंद करके रखा गया, मुझे जंगल में होना चाहिए था. और उसका वो रेज जो है, एक्सट्रीम एंगर जो है, वो बिल्कुल शांति से अपने अंदर रखता है. क्वाइट रेज मतलब बिल्कुल शांत है और अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में है. लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. ठीक है, lurking का मतलब होता है hiding to attack, छुपकर किसी पे अटैक करने का जो पोजीशन होता है उसको लॉकिंग बोलते हैं. शैडो का सेंस है पेड़ के नीचे या किसी भी जगह पे घास के नीचे. स्लाइडिंग मतलब होता है मूविंग स्मूथली, मतलब धीरे धीरे सरक कर चलना. उसके बाद देन प्लम्प लास्ट लाइन में लिखा हुआ है. प्लम का मतलब होता है फैटी, हट्टा कट्टा, जो खाते पीते घर का होता है. जैसे हम लोगों में से भी कुछ लोग होते हैं खाते पीते घर के मोटे ताजे, वैसे ही प्लम डियर मतलब होता है मोटा हट्टा कट्टा सा जो हिरन है, उसको प्लम डियर कहते हैं. ना second stanza में the poet is trying to give a description about how the same tiger about whom we are talking here, how the same tiger should be in the jungle and how he should have been behaving there when he is in jungle. वो जंगल में होता तो कैसे behave करता. He should be lurking means hiding to attack on some prey. वो छुपा होता, अगर वहाँ जंगल में होता तो वो छुपा होता, छुप करके शैडो में मतलब पेड़ के नीचे या ग्रास के नीचे. एंड स्लाइडिंग थ्रू मतलब धीरे धीरे मूव कर रहा होता ग्रास के नीचे छुप करके. नियर द वाटर होल मतलब किसी वाटर सोर्स. वाटर होल मीन्स बेसिकली वाटर सोर्स होता है, आप तालाब को ले सकते हैं, झील को ले सकते हैं, यहाँ कंसिडर कर सकते हैं. तो द सेम टाइगर व्हेन ही शुड हैव बीन इन द जंगल, ही वुड बी हाइडिंग in the shadow of grass, he would be hiding near the trees, waiting for some prey. किसी शिकार के इंतजार में होता और वो किस शिकार को अटैक करता,
अ प्लम्प डियर, हट्टा कट्टा एकदम मोटा ताज़ा सा डियर। डियर फेवरेट डिश होता है इन लोगों का, प्रे होता है टाइगर लॉयन का, इसलिए उसके बारे में कह रहा है। तो अगर वो जंगल में होता तो वो छुप करके आज अटैक कर रहा होता, शैडो में, मतलब परछाई में छुप करके, घास के नीचे या पेड़ के नीचे छुप कर, वाटर होल मतलब वाटर सोर्स, किसी तालाब के नीचे छुप करके वो आज प्लम डियर का शिकार कर रहा होता। बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ही इज confined to cage in a zoo. Let's move to this third stanza. Once again, as I told you before कि second और third stanza टाइगर का नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे होता है वहाँ पे। थर्ड स्टैंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, fangs, his claws terrorizing the village. देखिए यहाँ पे स्नैरलिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, किसी को दहाड़ लगा के डराना या उसको वार्निंग देना, दैट आई एम गोना अटैक यू, सावधान हो जाओ, इस टाइप से, ठीक है। देन बेयरिंग मतलब एक्सपोजिंग या शो करना, दिखाना। फैंग्स का मतलब होता है जैसे किसी भी जानवर का आप देखे होंगे, खासकर लॉयन, टाइगर्स का या डॉग्स का भी होता है, ऊपर वाले साइड के जो दांत होते हैं उसमें कॉर्नर पे दो लंबे लंबे दांत होते हैं जो शार्प होते हैं बहुत, उसको फैंग्स बोलते हैं। क्लॉज का मतलब होता है पंजा। टेरराइजिंग मतलब फ्राइटनिंग, क्रिएटिंग फियर, इस ये मतलब है। तो यार थर्ड स्टैंजा में कह रहे हैं पोएट कि दैट सेम टाइगर वन हु इज केज्ड और कन्फाइंड इनटू द जू इन अ केज, the same tiger should be should have been in the forest, and he should be snarling, making an angry and making a warning to the prey अराउंड दी हाउसेज, घरों के आसपास, जंगल के किनारे पे जो घर होते हैं जंगल से बाहर किनारे साइड में बॉर्डर एरिया में, वो आज टाइगर अगर जंगल में होता तो वो दहाड़े लगाता और घरों के पास लोगों को टेरराइज करता, डराता, जंगल में अपने प्रे को इस तरह से दहाड़ के डराता। एंड bearing his white fangs, bearing means exposing, showing his white fangs, लंबे लंबे जो तीखे दांत होते हैं उसके शार्प, उनको दिखा करके वो डराता लोगों को और प्रे को, अपने शिकार को डराता। his claws, अपने fangs को दिखाता, तीखे दांत को, अपने claws को दिखाता, लोग डरते। terrorizing the village, पूरे गांव के लोग उससे डरे होते। and the tiger would have been considered the king of the forest, लोग डरते फॉरेस्ट में। but no, this tiger is not in the forest, he is in the cage and nobody is getting terrorized with the tiger. ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं पोएट। मतलब सेकंड और थर्ड स्टैंजा में कहा गया है कि कैसे ये टाइगर अगर जंगल में होता तो कैसे बिहेव करता। लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टैंजा। बट द टाइगर, बट ही का मतलब है टाइगर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है ब्रिक्स एंड मोर्टार्स से जो बने रहते हैं, दीवार जो बने रहते हैं, मतलब ईंटें पत्थर से बने रहते हैं, ठीक है, उनको कॉन्क्रीट सेल बोलते हैं, जो अनप्लीजेंट से स्पेस होते हैं। देन इसमें और कोई मीनिंग बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। बट द पोएट इज सेइंग, बट दिस टाइगर अबाउट whom we are talking, that how he should have been behaving when he is in the forest, this tiger is locked, वो बंद है, confined है, कस्टडी में है, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक मोटर ब्रिक्स से बने हुए सेल में, केज में, बाड़े में बंद है। एंड ऑल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है, पावर है, जो टेरराइज कर सकता था वो विलेजर्स को या अपने प्रे को, वो सारी की सारी पावर बार्स के पीछे बंद है, पिंजरे में। स्टॉकिंग मीन्स मूविंग स्लोली, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केज के लेंथ को, जो भी थोड़ा बहुत 10 बाई 10 का केज है, अगर 10 फीट बाई 10 फीट का, तो उस केज के स्पेस को वो लेंथ को मेज़र कर रहा है, लग रहा है जैसे वो काउंट कर रहा है चलते हुए, वैसे इस तरह से वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। बिकॉज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स एंड ही कैन नॉट टेरराइज द विलेजर्स इन द फॉरेस्ट, नियर बाय द फॉरेस्ट। Ignoring visitors, the tiger is ignoring all the visitors, those who come to the zoo and see tiger. They make fun of the tiger that he is the king of the tiger, king of the forest, and he is locked. The tiger is ignoring them because the tiger is knowing that nobody can help him. He is confined, he is locked, and these visitors, those who are coming to see me, they cannot help me. So he is ignoring all the visitors, seeing that I'm hopeless. Now let's move to the fifth stanza, last stanza. So
Then the next poetic device is personification, means he. Personification is a poetic device where the poet uses some personal pronouns in order to talk about non-human characters. Non-human मतलब जो human नहीं होते हैं उसके बारे में, जैसे animals, non-living things, इनको जब पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करके जैसे ही, आई, वी, यू इस तरह से करके बताया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. मतलब एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है उस नॉन ह्यूमन चीज़ थिंग को. ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए. लाइक इन फर्स्ट स्टैंजा ही लिखा हुआ है, मतलब टाइगर को ही बताया गया है, पर्सनिफाइड किया गया है. उसी तरह से सेकेंड स्टैंजा में भी ही बताया गया है, थर्ड स्टैंजा में भी ही बताया गया है. उसी थर्ड स्टैंजा में थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं बेयरिंग हिज, मतलब शोइंग हिज बताया गया है. ये सब पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है. फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में भी ही का यूज़ किया गया, हिज का यूज़ किया गया. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस. Enjambment, when the same sentence completes in 2 or more lines without the use of punctuation mark. ये मैंने पहले ही बताया था, जब एक सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स में कंप्लीट होता है उसको enjambment बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को. स्टैंजा नंबर 5 में आप देखिए लाइन नंबर सेकेंड लास्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, लास्ट के दोनों लाइन. एंड स्टेयर्स, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है द टाइगर स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंस है जो कि 2 लाइन में कंप्लीट हो रहा है. और इन दोनों फर्स्ट लाइन के बाद कोई इंजैबमेंट नहीं है, मतलब पंक्चुएशन मार्क नहीं है. उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड स्टैंजा में आप इंजैबमेंट का एग्जाम्पल देख सकते हैं. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. इन तीनों लाइन में, फर्स्ट 2 लाइन में या कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखा है, मतलब ये इंजैबमेंट का एग्जाम्पल है. देन फर्स्ट स्टैंजा में यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट. फर्स्ट 2 लाइन्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. सेकेंड लाइन में पंक्चुएशन मार्क लगा है, मतलब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, सेंस है, एक कंप्लीट सेंस है, सेंटेंस है जो कि सेकेंड लाइन में कंप्लीट हो रहा है. मतलब पहले सेंटेंस में कोई नहीं आया पंक्चुएशन मार्क. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट. Next poetic device is imagery. Guys, the whole poem is the example of imagery. Imagery is when the poet creates a scene by his words in the poem in front of the students or readers by using some action words. Generally action words को use करते हैं poet अपने पोएम में अपने वर्ड्स के थ्रू, और उसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होता है, उसको इमेजरी बोलते हैं. जब आप इमेजिन करने लगते हैं कि कैसा हुआ होगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. लाइक जैसे कि पोएट कह रहे हैं ही, मतलब टाइगर स्टॉक्स मतलब वॉक स्लोली इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो यहाँ एक्शन यूज़ किया गया कि वो टाइगर चल रहा है धीरे धीरे उसके विविड स्ट्राइप्स में. तो इसको सुनने के बाद आप इमेजिन करने लगते हैं कि वो टाइगर कैसा दिखता होगा और वो जब चल रहा होगा केज में तो कैसा दिख रहा होगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. अगेन इमेजरी का एग्जाम्पल, ही शुड बी लॉगिंग इन शैडो. उसको अभी छुप करके अटैक करना चाहिए था. तो इसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में जब आप सुनेंगे या पढ़ेंगे कि कैसे वो टाइगर ग्रासेस में छुप रहा होगा, कैसे शैडो बना करके छुप रहा होगा. आपने डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी पे भी देखा होगा इस तरह के शोज़ जिसमें टाइगर्स के बारे में दिखाया जाता है. तो वो लोग कैसे छुप के अटैक करते हैं. तो ये सारे लाइन्स को पढ़ने के बाद आप इमेजिन करने लगते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड. स्नैरलिंग इज अ साउंड वर्ड. वो दहाड़ रहा होगा, एंग्री नॉइज निकाल रहा होगा. तो इसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी. कॉन्सोनेंट्स मैंने पहले भी बताया था. इट इज द रेपिटेंस ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन एनी इन द वर्ड फॉर 2 or more वर्ड्स इन अ लाइन. जैसे कॉन्सोनेंट्स का मैं 1-2 एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, बाकी आप पूरे पोएम में ढूंढ लीजिएगा इस नोट से. स्टॉक्स, फर्स्ट लाइन देखिएगा, स्टॉक्स में सॉ आ रहा है लास्ट में, फर्स्ट में भी सॉ आ रहा है. एंड देन हिज सॉ आ रहा है एस साउंड. देन स्ट्राइप्स में एस आ रहा है. ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. कहीं पे भी आ सकता है, वर्ड के इनिशियल में आ सकता है, मिड में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है. इसमें इसको कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल बोलते हैं. लाइक एक और कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल देख लीजिए. स्टैंजा नंबर 4 सेकेंड लाइन, हिज में सॉ आ रहा है एस साउंड, स्ट्रेंथ में एस आ रहा है, बार्स में एस आ रहा है. And then assonance, it is the repetence of the vowel sound anywhere in the word, initial में, mid में या last में, for 2 or more words in a line. एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड में होना चाहिए. जैसे assonance का एक एग्जाम्पल देख लीजिए. स्टैंजा नंबर 3 के सेकेंड वर्ड शुड में ओ आ रहा है, देन उसके बाद अराउंड में ओ आ रहा है, हाउसेज में ओ आ रहा है. तो ओ साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ पे, बार बार आ रहा है. इसको एसोनेंस का एग्जाम्पल बोलेंगे. गाइज इसी पोएम में एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन का.
इट इज़ व्हेन, ऑक्सीमोरोन मतलब होता है इट इज़ व्हेन पोएट्स यूज टू अपोजिट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स मतलब क्वालिटी बताना, नेगेटिव या पॉजिटिव. इट इज़ व्हेन पोएट्स यूज टू अपोजिट एडजेक्टिव्स टुगेदर इन अ लाइन, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन. जब एक ही लाइन में दो वर्ड्स एक साथ यूज हो रहे हैं, एक ही साथ एक के बाद एक, और दोनों का मतलब अपोजिट होता है, उसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. गाइस, ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल देखिए स्टैंजा नंबर 1 के लास्ट लाइन में, इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ क्वाइट और रेज ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है. जैसे क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल साइलेंस, साइलेंट होना, शांत होना. रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर. तो दोनों अपोजिट मीनिंग है एक दूसरे के बिल्कुल, और दोनों एक साथ यूज हुए हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन. The next poetic device is metaphor, pads of velvet. Metaphor is the device when two things are compared indirectly. जब दो चीज़ों के बारे में indirectly compared किया जाता है और उनके बीच में कोई like as example word use नहीं होता है. जैसे softness is compared here. जैसे मैं आपको example दिखाता हूँ pads of velvet. Guys, you can see stanza number 1, थर्ड लाइन, पैड्स ऑफ वेलवेट. मतलब यहाँ टाइगर के पैर के जो पैड्स है, मतलब फुट के अंदर वाला पोर्शन, उसको वेलवेट के क्लोथिंग से मतलब मखमल से कंपेयर किया गया है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर. द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन, plum pass stock. Alliteration is the device where initial sound of a word starts with consonant sound. Initial sound जो होता है किसी word का वो consonant sound होता है, और किसी भी sentence, किसी भी line में दो या दो से ज़्यादा बार ऐसे words मिलते हैं जिसका initial sound consonant होता है. जैसे plum pass, stock stripes, behind bars. आप लोग देख लीजिएगा अपने stanzas भी ढूंढ कर. मैंने स्टैंजा नंबर भी लिख दिया है. प्लम पास सेकंड स्टैंजा में, स्टॉक स्ट्राइप्स फर्स्ट स्टैंजा में, बिहाइंड बार्स फोर्थ स्टैंजा में. नाउ लास्ट पोएटिक डिवाइस इज ऑनमेटोपिया. इट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स. ये साउंड वर्ड्स जो होते हैं जिससे आवाज़ के बारे में पता लगता है. लाइक गा 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 हम लोगों ने पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट में, यंग सीगल के बारे में गा गा गा, वो साउंड वर्ड था, वो ऑनमेटोपिया का एग्जाम्पल था. उसी तरह से इस पोएम में स्नैरलिंग मतलब मेकिंग अ नॉइज और गिविंग अ वार्निंग, एंगर शो करना, ये एक साउंड वर्ड है स्टैंजा नंबर 3 में. ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑनमेटोपिया, राइट. So I hope you guys have understood this poem very nicely, and if you have any doubt or query you can put into comment, and hope so that you will be getting proper understanding of this poem. Hopefully I'll be uploading the next topic from literature up next, and till then have a nice day, have a nice time, and take care.